for today's message, I want to give you I read a verse, Jeremiah chapter 15, verses 19. यिर्मयाह का 15वां वचन का 19वां वचन पढ़ेंगे, 15 का 19. This is how the Lord responds. If you return to me, I will restore you so you can continue to serve me. If you speak good words rather than worthless ones, you will be my spokesman. You must influence them. Do not let them influence you. यदि तू लौट आए तो मैं तुझे चंगा करूंगा, तू मेरे सम्मुख खड़ा करेगा, और यदि तू निकम्मों में से अनमोल को निकाल लाए तो तू मेरा प्रवक्ता बनेगा. This is a very powerful word of God I received from God. ये परमेश्वर का बहुत सामर्थी वचन है जिसे मैंने परमेश्वर से मिला है. It has a different parts. I will give you explanation from different parts. इस वचन में अलग-अलग हिस्से में उन सभी के बारे में अभी बताने वाला हूं. The first thing God is talking to you. You should return to me. सबसे पहली बात जो परमेश्वर बोल रहा है, यदि तू लौट आए. That is the first point. Wherever you are, God is calling to return to Him. Return to Him. आप कहीं पर भी हो, परमेश्वर ये बोल रहा है, यदि तू लौट आए. If God is telling you to return, then something is wrong. यदि परमेश्वर बोल रहा है कि लौट आने का, इसका मतलब है कुछ तो भी गलत हो रहा है हमारे जीवन में. That means you are not with the presence of God. इसका मतलब है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं हो. So when I was meditating, when I was praying, God showed me some people. They were doing ministry in the past, but now they are in a deviated path. मैं देख रहा हूं कि परमेश्वर ने मुझे कुछ लोगों के नाम बताए कि वो पहले सेवकाई तो कर रहे थे, लेकिन अभी सेवकाई से हटकर और कुछ काम कर रहे हैं. Because their attention move away from the word of God, and they are after some kind of a wrong teaching. और उनकी दृष्टि जो है परमेश्वर से वचन के हटकर बाहर चले गई और कुछ गलत शिक्षाओं के पीछे वो चले गए. Some of you are very excited when you were first born again, but now your excitement is gone. आप में से कई लोग जब आपका नया जन्म हुआ था तो आप बहुत उत्साह से भरे थे, अभी आपका उत्साह और उमंग सब चला गया है. Now you are going to like worldly people. अभी आप सांसारिक लोगों के पीछे जा रहे हैं. Because of this, you are getting so many troubles. You cannot enter into your future. और इसी के कारण आपके जीवन में बहुत समस्या है और आपको एक भविष्य नहीं मिल रहा है. And if you want a deliverance in your life, God is telling you to come back. और यदि भी आपको छुटकारे की जरूरत है, परमेश्वर बोल रहा है कि तू वापस लौट आए. Because some of people don't have that love where they have already to the God, but now their love is frozen. अभी आप में से कई लोगों के पास वो प्रेम नहीं है परमेश्वर के साथ. अभी आपका जो प्रेम है, वो परमेश्वर का प्रेम, वो बर्फ के समान कड़क हो गया है. And today the Holy Spirit is telling you to return to Jesus, return to the God. अभी पवित्र आत्मा ये वाक्य बोल रहा है कि आप सभी लोग परमेश्वर से वापस आ जाओ, लौट आए. If you return to the Lord, the second thing's going to happen in your life. He will restore you. अगर हम वापस आएंगे तो परमेश्वर हमें चंगा करेगा. He will restore whatever you lost, whatever may be the area. He is going to restore everything to you. जो भी हमने गवाए हमारे जीवन में, परमेश्वर उन सभी चीजों को पुनर्स्थापित करेगा. God will restore His relationship with you. परमेश्वर अपना संबंध आपके साथ फिर से पुनर्स्थापना करेगा. So whatever you lost in the past years, God is going to restore you. जो भी चीज है, जो भी बातें आपने अपने भूतकाल में पिछले के सालों में आपने गवाया, उन सारे चीजों को परमेश्वर पुनर्स्थापना करने वाला है. And God will restore your time.
और परमेश्वर आपका समय को भी पुनः स्थापना कर रहा है। Every area of your life. Right now, when I am preaching, you can see that some of your areas you are seeing no prosperity. Some areas of difficulties in your life, but God is telling you, God is going to restore that area. जब मैं आपके लिए प्रचार कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ क्षेत्रों में उन्नति नहीं है, बढ़ोतरी नहीं है, सफलता नहीं है, लेकिन परमेश्वर बोल रहा उन क्षेत्रों में मैं पुनः स्थापना करने वाला हूँ। Partik Silve, God is telling you, God is going to restore whatever you lost in the past. प्रतीक सिल्वे, परमेश्वर बोल रहा है कि भूतकाल में आपने जो भी गवाया उन सब बातों को परमेश्वर पुनः स्थापना करने वाला है। Especially God is showing me, God is going to give you back the time. विशेष तौर से परमेश्वर बता रहा है कि आपके जीवन में वो समय वापस दे रहा है। The two things will happen in your life. First thing, you will get back the time, the lost years. वो दो बातें आपके जीवन में होंगी। सबसे पहली बात कि आपको वो जो समय, जो साल जो चले गए, बीत गए, उन सालों को परमेश्वर आपके जीवन में वापस लौटा रहा है। The second thing, he will increase the speed of your progress. परमेश्वर आपकी बढ़ोतरी को और तेजी कर रहा है। And I see that you are going, in my vision, I can see that you are climbing a ladder. और मैं देख रहा हूं कि आप एक सीढ़ी को चल रहे हैं। And it is a climbing, you are climbing a ladder to a higher position. और मैं देख रहा हूं वो जो सीढ़ी है एक ऊंचे स्तर पे जा रही है। And it represents two things in your life. और ये जो सीढ़ी है आपके जीवन में दो बातों को बताती है। The first thing, the financial barrier God will break. The second thing, God is going to reach you a higher realm of spiritual maturity. सबसे पहली बात कि परमेश्वर आपकी आर्थिक समस्या को तोड़ रहा है और आपको एक ऊंचे दर्जे पे उठा रहा है आत्मिक तौर पर। I can see that you are going to see visions from God. You are going to see visions from God. मैं देख रहा हूं कि आप परमेश्वर से आप दर्शन देखने वाले हैं। Before this meeting, when I was praying, I saw the angel of the Lord is standing above the people. I see an angel. मैं इस सभा को चालू होने के पहले मैं देख रहा था कि परमेश्वर का स्वर्गदूत लोगों के ऊपर में खड़ा था। This is a confirmation. When I speak to you, I see the angel with you. मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो मैं परमेश्वर का स्वर्गदूत भी आपके साथ देख रहा हूं। And God is showing me you have already some dreams about your ministry, some angelic visitations. You are going to get dreams. परमेश्वर बता रहा है कि अभी आपके पास कुछ स्वर्गदूत आके आपसे बातचीत करते हैं और उसी के दर्शन आपको मिला है। Do you have any such experience in your life? क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ है भाई प्रतीक? पता ही ऐसा कुछ अनुभव हुआ है? Just raise your hand if it is correct. If you have, just raise your hand. ऐसा हुआ? Yes, he's raising his hand. I will just unmute because others to hear what he has to say. I am going to unmute you. Brother, yes. Praise the Lord, prophet. It's true, prophet. I hear some voices through like God's telling me something about my ministry. मेरे को परमेश्वर बताते हैं कई बार कि मिनिस्ट्री के लिए और वचन से संबंधित भी कि परमेश्वर मुझे कैसे इस्तेमाल करेंगे और क्या चीजें होंगी। God is showing you what is his future, what is his ministry. God is revealing it to him. And especially what I see is the Lord, angel of the Lord is with you. And whenever you going to minister, you are going to see supernatural manifestations. Amen. परमेश्वर मेरे को बता रहा है कि जब भी आप सेवकाई करेंगे तो आप अलौकिक बातों को देखेंगे। When I speak to you, I see you are standing in a stage and I see a big crowd. जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि आप एक स्टेज पे और बहुत बड़ी सभा है। And it is a big tent. It's a big tent. और एक बड़ा तंबू है। And at the side of that tent is like I can see that some tin sheets. The side. वो तंबू के बाजू में सब टिन के शीट्स है। And crowd is so much of crowd, so much of that. It is filled बड़ी भीड़ है वहाँ पर है। So and God is using you mightily there.
परमेश्वर आपको Hallelujah. सामर्थ्य रूप से Hallelujah. इस्तेमाल कर Hallelujah. रहा I है। receive it, man. I receive it. I receive it. Father, I am I- praying Yeah. for the party. Let them receive a mighty anointing right now. परमेश्वर मैं प्रार्थना के लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनके जीवन में एक महान अभिषेक तो आ जाए। Father, I am praying for an impartation. I am praying for an परमेश्वर मैं impartation. एक अलौकिक प्रदान के लिए प्रार्थना करता हूँ। Let a revival start through him. परमेश्वर एक बेदारी उसकी तरफ से आने दे परमेश्वर। Let him see the visions. Let him see the power of God. परमेश्वर की सामर्थ उसके पास आने दे। Hallelujah. Hallelujah. Just like William Branham. Just Oh, like right. William Branham. विलियम ब्रैनम के God समान is going to use. Yes. परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने वाला है। Hallelujah. 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 Names will be revealed. नाम आपके जीवन में प्रकट होंगे। Hallelujah. Hallelujah. Are you Hallelujah. praying for? Do you have any connection with the ministry of William Branham? Yes, prophet, because मैंने उनके बारे में सुना था prophet कि वो थर्ड डायमेंशन तक गए हैं प्रार्थना में और सामर्थ में, और मैं चाह रहा था परमेश्वर मुझे ऐसे इस्तेमाल करे कि किसी भी व्यक्ति के सामने कोई ऐसी चीज ना रहे, वो ये कभी ना कहे, मतलब मैं जब भी किसी के सामने खड़ा हूँ परमेश्वर से बस वो प्रेम करने लग जाए, जो भी मुझे चाहे 5 मिनट के लिए भी मिले वो परमेश्वर को अपना दिल दे दे। और मैंने विलियम ब्रैनम के बारे में सुना कि वो परमेश्वर के बहुत बड़े दास हुए। This is God is showing. He's saying that he heard about William Branham and that he had a good word of knowledge that God used to reveal to him about many things. Yes, and God will use you such a man. परमेश्वर आपको इसी रीति से इस्तेमाल करेगा। Thank you, Jesus. Thank you, In Jesus. the name of Jesus, I I pray. Amen. receive it in the यीशु name के of Jesus. सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना करते हैं। So what I am telling you, God is going to restore everything. जो मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर आपके जीवन में पूर्ण स्थापना करने वाला है। Let us read Joel chapter 2 verses 25. योएल की नबी का दूसरा अध्याय का 25वां वचन को हम पढ़ते हैं। Yes, okay. The Lord says, I will give you back what you lost to the swarming locust, the hopping locust, the stripping locust, and the cutting locust. It was I who sent this great destroying army against you. Yes. परमेश्वर बोला कि जो टिड्डियों ने आपके जीवन में खाया उन चीजों को मैं वापस आपके जीवन में लौटाऊंगा। And this is God is the locusts means some kind of a difficulty already happened in our life. It may be your health, it may be your time, it may be your business, it may be your family troubles, whatever may be, whatever may be, God is going to restore. जो भी टिड्डियों का मतलब है जो भी चीजें आपके जीवन में आपका जो भी चीज आपके जीवन में नाश की, चाहे वो बीमारी हो या कुछ भी, परमेश्वर उनको वापस लौटा रहा है। And the Nigel brother, God is giving you the time. God is giving the time back. भाई नाइजल, परमेश्वर आपको वो समय वापस दे रहा है। And I can see that your ministry is booming very soon. Yes, amen, amen. Thank you, Lord. मैं देख रहा हूँ कि आपकी सेवकाई बहुत आगे बढ़ रही है। Yes, I can see that you are registering a ministry. मैं देख रहा हूँ कि आप एक सेवकाई को आप रजिस्टर कर रहे हो। Yes, Lord. And it will, within a short time, it will expand. और छोटे समय ये सेवकाई जो आप शुरू कर रहे हैं ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। And it has a connection with Delhi and Agra. और ये जो सेवकाई है ये दिल्ली और आगरा के साथ उसका कनेक्शन रहेगा। And God will use you mightily as an apostle. और परमेश्वर आपको बहुतायत से इस्तेमाल करेगा एक प्रेरित होने के नाते। You will do a business, but in between you will go to the ministry. आप एक बिजनेस करोगे लेकिन बीच-बीच में आप सेवकाई भी करोगे। I can see that God is going to use you to write many books. मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा बहुत सारी किताबों को लिखने के लिए। And your topic will be the restoration. और आपका जो शिक्षा रहेगा लिखने का वो है पूर्ण स्थापना। And the heavenly visions. और स्वर्गीय दर्शन, पूर्ण स्थापना और स्वर्गीय दर्शन। And especially you are going to get more revelations about the visions, just like Apostle Paul. और आपको विशेष तौर से स्वर्गीय दर्शनों के बारे में आपको प्रकाश मिलेगा पौलुस प्रेरित पौल के समान।
So who are watching this program, who are is in the ministry, God is going to restore your ministry back. जो भी यहाँ पे सेवकाई कर रहा है और इस प्रोग्राम को देख रहा है, परमेश्वर आपकी सेवकाई को पूर्ण स्थापना करने वाला है, जो भी हर एक प्रभु के दास के जीवन Because में। you had suffered a lot, you have suffered a lot, lost many things, but God is going to give it back right now. क्योंकि आपने सेवकाई में बहुत सी चीजों को आपने गवाया है, आपके जीवन में बहुत क्लेश हुआ है, लेकिन परमेश्वर उन चीजों को पूर्ण स्थापना करना है। How many of you believe God will restore everything to you? कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में उन सब बातों को पूर्ण स्थापना कर रहा है, पूर्ण मेरे जीवन में पूर्ण स्थापना कर रहा है। Write this date, write today's आज के date, ये दिन को आप लिख लीजिए, and this will happen in your life because you ये believe. आपके जीवन में होने वाला है। So now I'm continuing to the message. आज मैं इस वचन में और आगे बढ़ रहा हूँ। Okay, then if you again read Jeremiah chapter 15 verses 19, here God is saying, you need to speak good words. I will again read. Yes. This is how the Lord responds. If you return to me, I will restore you so you can continue to serve me. If you speak good words rather than worthless ones. This is the next thing God is telling. Yes. Yes. Jeremiah chapter 19 verse Jeremiah chapter 15 verses 19. okay, 15. Sorry. 15 verse 19. 15 verses 19. यदि तू लौट आए तो मैं तुझे चंगा करूंगा, तू मेरे सम्मुख खड़ा रह करेगा, और यदि तू निकम्मों में से अनमोल को निकाल लाए तो तू मेरे प्रवक्ता बनेगा। So you have to speak good words. You need to speak good words rather than useless ones. तो हमें अच्छे बातों को बोलना है, व्यर्थ बातों को हमारी जबान से आने नहीं देना। For example, Jesus never spoke negative things in his life. यीशु उदाहरण के तौर पर यीशु ने कभी भी अपने जीवन में नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं किया, नकारात्मक शब्दों का। Jesus saw so many negative things in his worldly life. यीशु मसीह ने अपने जीवन में बहुत से नकारात्मक बातों को देखा है। Even though a deceased person came before him, he saw many deceased people, but he never say, I cannot heal you. यीशु मसीह के पास बहुत से बीमार लोग आए, लेकिन कोई भी बीमार व्यक्ति को यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा मैं तुम्हें चंगा नहीं कर सकता। He saw a dead person, he never said I cannot rise that person back to life. जब उसने एक मरे हुए व्यक्ति को देखा तो उसने कभी ना कहा कि मैं इस मुर्दों को कभी जिंदा नहीं कर सकता। In Jesus' point of view, death is like a sleep. He just is saying he's just sleeping. यीशु के नजर मृत्यु तो केवल एक सोना है। यीशु ने मृत्यु को एक सोने के समान देखा कि वो व्यक्ति सो रहा है। When the disciples said they had no food, Jesus never said what to do, but he prayed. The bread multiplied. जब शिष्यों ने कहा कि हमारे पास भोजन नहीं है खाने के लिए, यीशु ने कभी नहीं कहा कि मैं क्या करूं। यीशु मसीह ने उस जो भोजन था उसके लिए प्रार्थना की और वो भोजन बहुगुणित हो गया। When Peter said about how to pay tax, Jesus said, "Go and catch a fish. You will find a coin in his mouth." He never said, I don't know how to pay the tax." जब पतरस ने पूछा कि मुझे कर्ज देना है तो यीशु मसीह ने कहा कि जाओ मछली को पकड़ो और उसके मुंह में आपको सोने का सिक्का मिलेगा। यीशु मसीह ने कभी भी उत्तर नहीं दिया कि मैं ये कर्ज को मैं कैसे चुकाऊं। So whatever he said, it already happened. जो कुछ यीशु मसीह ने बोला वो हुआ। So what we should do is we should be like Jesus and imitate Jesus in our life. हमें क्या करना है, हमें यीशु मसीह का नकल करना है और जैसे यीशु मसीह ने किया हमें भी वैसे ही करना है। You should not copy a pastor, you should not copy a prophet, you should not copy me, you should copy Jesus, you should imitate Jesus.
आप एक भविष्यवक्ता या भविष्यवक्ता मानी का नकल न कीजिए, आपको केवल यीशु मसीह का नकल करना है, आप उसका नकल Yeah, कीजिए यीशु मसीह का। I can see that many people are going after prophet to prophet, pastors to pastors, but they are not going to receive anything. मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोग भविष्यवक्ता के पीछे, दूसरे भविष्यवक्ता के पीछे, प्रभु के दास के पीछे, दूसरे प्रभु के दास के पीछे भागते हैं और उन्हें कुछ नहीं मिलता है। If you look to Jesus and if you imitate Jesus, you will see the result in your life. यदि आप यीशु को देखेंगे और यीशु को अपने जीवन में लाएंगे तो आपके जीवन में आपको उत्तर मिलेगा। And Jesus never said a bad thing, never said a bad word in his life, never said a negative thing in his life. यीशु मसीह ने नकारात्मक शब्दों को अपने जीवन में कभी नहीं बोला। But what he said is actually what he saw in the spiritual realm. लेकिन यीशु मसीह ने जो बोला उसने पहले आत्मिक रूप से देखा और उन चीजों को उसने बोला। फिर We know that Lazarus was a dead person, died. हमें ये बात की जानकारी है कि लाजर जो था 4 दिन का मरा हुआ मुर्दा था। But when Jesus heard about Lazarus, he saw in the spirit that he is coming back to life. लेकिन जब यीशु मसीह ने लाजर के बारे में सुना तो उसने देखा आत्मा में कि लाजर जिंदा होते हुए देखा। He saw every disease is going to be healed by God. उसने देखा कि हर एक बीमारी परमेश्वर के द्वारा से चंगा हो रहा है। He saw in his spiritual eyes that bread is going to multiply. और यीशु ने देखा कि वो जो रोटियां और मछलियां है वो बहुगुणित होने वाली है। And he saw he is going to defeat Satan in the future. और यीशु मसीह ने देखा कि भविष्य में वो शैतान को हराएंगे भविष्य में। And he already saw in his spirit that Satan is falling down from the heaven. और यीशु मसीह ने आत्मा में देखा कि शैतान बिजली के नाई स्वर्ग से गिरते हुए देखा। So what God is telling you, you should look to the spiritual realm rather than the spiritual realm. Sorry, rather than the physical realm. या परमेश्वर क्या बोल रहा है कि हमें आत्मिक निगाह से देखना, आत्मिक क्षेत्र में देखना, ना कि शारीरिक क्षेत्र में देखना। हमें हमारी निगाह है। If you look through the spiritual eyes, you will see supernatural things happening in your life. अगर हम आत्मिक आंखों से देखेंगे तो हम अद्भुत बातों को हमारे जीवन में होते हुए देखेंगे। Your mind or body cannot understand that, but your spirit will understand it is going to be a supernatural thing. आपके मन और शरीर इस बात को ज्ञान नहीं कर पाएगा, लेकिन आपका आत्मा अवश्य जान लेगा कि क्या हो रहा है। For example, I will give you an example. मैं उदाहरण देता हूं आपको लोगों को। Many deceased people coming to us for prayer. कई बीमार लोग हमारे पास आते हैं प्रार्थना के लिए। And some of their conditions are very, very bad. और उनमें से कई लोगों की जो परिस्थिति बहुत गंभीर है। When I saw in my, as a person, in my mind I can say that, oh, this is not going to happen because this problem is very, very, very high. जब मैं उस व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे मन में ये विचार आता है कि ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये समस्या अति गंभीर है। But in my spiritual eyes, I can see that problem is going to vanish and that person is going to be healed very soon. आमीन आमीन। लेकिन मैं अपनी आत्मिक आंखों से जब मैं देखता हूं तो मैं देखता हूं कि यह व्यक्ति चंगा होने वाला है और परमेश्वर उसको पूरा चंगा कर रहा है। You should neglect your physical eyes. That means physical vision, and you should accept the spiritual vision. जो भी हमारी जो शारीरिक आंखों से हम देख रहे हैं उन बातों को हमें नकारना है, और आत्मिक आंखों से हम क्या देख रहे हैं उन बातों को हमें ग्रहण करना है। Maybe you are seeing a difficult situation in your life. Maybe you cannot solve that problem with your knowledge, but you should see with your spiritual eyes, and you can see that the solution is already there. आमीन आमीन। हो सकता है कि आप अपने जीवन में एक ऐसी गंभीर परिस्थिति को देख रहे हो, लेकिन आपको अपनी आत्मिक आंखों से देखना है कि परमेश्वर वहां पे एक समाधान दे रहा है और उस परिस्थिति को हटा रहा है।
You should not speak worthless words. आप व्यर्थ बातों को न बोलने दीजिए अपने जबान से, व्यर्थ बातों को। You should avoid negative words in your life. नकारात्मक शब्दों को अपने जबान से न आने दीजिए। Even if you feel the negative things, don't speak it out. अगर आपको नकारात्मक बातों को भी आपको लग रहा है बोलने के लिए, तो भी न बोलिए। Always substitute the negative word with the word of God. हमेशा नकारात्मक शब्दों को परमेश्वर के वचन से आप उसको डाल दीजिए। For example, if somebody having a problem on their body, your mind, your brain will say it may be the start of a cancer. हो सकता है कि उदाहरण के तौर पे आपको पता चला कि एक व्यक्ति के शरीर में कुछ समस्या है, कुछ दर्द है, और आपका मन ये बता रहा है कि ये कैंसर के लक्षण है। The mind will trick you. आपका मन आपको धोखा देगा। Then how you can spiritually deal with that problem? तो फिर हम इसको हम आत्मिक तौर से हम इसको कैसे हम इसको डील करेंगे? Substitute that problem with the word of God. That the word says, by his stripes we were already healed. Substitute that word with that problem. उस समस्या को हम परमेश्वर के वचन पर हमें इसको डालना है। जैसा कि वचन में कहता है कि आपके कोड़े, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। ये वचन को हमें उस समस्या में डालना है। There was a great man of God. His name was George Muller. Have you heard about? Yes. एक बहुत बड़ा प्रभु का दास था, उसका नाम था जॉर्ज मुलर फ्रॉम इंग्लैंड। He was a man of prayer. ये व्यक्ति जो था, ये प्रार्थना का व्यक्ति था। One day he was traveling to another place by ship. एक दिन वो एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा था जहाज में, समुद्री का जहाज पर। During their travel, a big fog came, and the captains cannot move the ship forward. और जब वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे थे समुद्र पे, तो उस समय पे एक बहुत बड़ा बादल आया था, बहुत बड़ा, इतना बड़ा गहरा बादल आया था कि वो जहाज आगे नहीं बढ़ पा रहा था। They stopped the ship, and the captain said, "We cannot continue our travel." और उन्होंने वो जहाज को रोक दिया, और वो जहाज का कप्तान ने बोला कि हम उस जहाज को अभी आगे नहीं बढ़ा सकते। But George Muller said, "I have to reach the other place within time, but I can see that this will go away and I will reach my destination." और जॉर्ज मुलर ने बोला कि मुझे उस दूसरी जगह पे जाना है अब उस समय पे, क्योंकि वहां पे मेरी सभा है, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर मुझे वहां पे लेके जाएगा। Every traveler was troubled, but what George Muller did, he went to a cabin and prayed for some time. और वो जहाज में हर एक व्यक्ति वहां पे गंभीर हो गया था, लेकिन जॉर्ज मुलर अपने कैबिन में चला गया और वहां पे वो प्रार्थना करने लग गया। Do you know what happened? The आपको fog मालूम क्या हुआ? disappeared. वो कोहरा जो था वो चला गया। The problem they were facing, the George Muller, with his prayer, he overcome that problem. आमीन। जो समस्या को वो लोग देख रहे थे, जॉर्ज मुलर ने उस समस्या को अपनी प्रार्थना के द्वारा से उसको जय पाई। The fog was a problem for the common man, but a man of prayer, that is not a problem. आमीन आमीन। कोहरा जो था एक साधारण मनुष्य के लिए समस्या था, लेकिन जो व्यक्ति प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, कोहरा उसके लिए कोई समस्या नहीं था। How many you have that faith to prayer? आमीन। कितने लोगों के पास ऐसा विश्वास है प्रार्थना करने के लिए? इस प्रकार का विश्वास कितने लोगों के पास है? If you, I can see that many people are receiving, and I tell you, if you pray, you will get your answer. और मैं देख रहा हूँ कि कई लोगों के पास ऐसा विश्वास उनके पास है, और मैं आप सभी को ये बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप प्रार्थना करेंगे आपको ये उत्तर मिलेगा। आमीन। When you are going through troubles, don't look at other person's face. Just go into your room and kneel down and pray to God. You will receive your answer.
जब आप समस्या से गुजर रहे हो, आप अपने कमरे में चले जाइए, दरवाजे को बंद कर दीजिए, प्रार्थना कीजिए और आपको आपके प्रार्थनाओं का उत्तर अवश्य मिलेगा। आमीन आमीन। So always neglect the negative things, but accept the word of God. तो हमेशा नकारात्मक बातों को पे ध्यान मत दीजिए, लेकिन परमेश्वर के वचन पर ध्यान दीजिए। Again, I am telling you, don't believe your circumstances, believe in the word of God only. अभी फिर से मैं दोबारा बोलता हूं कि आप अपने परिस्थिति पे विश्वास न कीजिए, लेकिन परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए। Let us read the Numbers chapter 14 verses 36, 37 and 38. गिनती की किताब 14 अध्याय 36 और Yes, गिनती की 36 किताब to 14 38. अध्याय 36 to 36 से 38. 38। I should I will, read or should I read? yeah, I will do that. Okay, The yes, 10 prophet. men Moses had sent to explore the land, the ones who incited rebellion against the Lord with their bad report, were struck dead with a plague before the Lord. Of the 12 who had explored the land, only Joshua and Caleb remained alive. जिन पुरुषों को मूसा ने देश का भेद लेने के लिए भेजा था और जिन्होंने लौटकर उस देश के विषय ऐसा भयावह चित्र प्रस्तुत किया था कि संपूर्ण प्रजा उसके विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगी, हो वे ही पुरुष जिन्होंने उस देश का भयावह चित्र प्रस्तुत किया था, यहोवा के सामने ही Okay, did you read that? महामारी से मर गए। 37 Oh, yeah, 37 I read. Okay. It is, you know, the situation. Moses sent some of the people to explore the land of Canaan. आपको ये परिस्थिति मालूम है, मूसा ने कुछ लोगों को भेजा कानान देश में उस देश का भेद लेने के लिए। They were about 12 people. ये 12 लोग थे। And they went to the land. They explored the land, then they came back. और ये 12 लोग उस कानान देश को उन्हें भ्रमण किया और वापस आकर उसके बारे में बताया। But the 10 people said, the land is good, but the people of that land is giants. We cannot conquer their land because we are like grasshoppers in front of them. लेकिन उन 12 में से 10 लोगों ने बताया वो जमीन, वो भूमि तो अच्छी है, लेकिन उस भूमि में दानव है और उस दानव के सामने हम तो टिड्डियां है और हम लोग उस दानव को हम हरा नहीं सकते, हम तो हार जाएंगे। It was God's promise that the Moses and the people will enter the promised land, that is the Canaan. परमेश्वर का ये वादा था मूसा को कि आप और आपके सारी प्रजा कनान देश में जाएंगे और उस देश के वो लोग आप वहां पे रहेंगे। But these 10 people, they saw the land, that the land was good, but they said the negative things. लेकिन ये 10 लोगों ने देखा कि ये भूमि तो अच्छी है, लेकिन नकारात्मक शब्दों को उन्होंने बोला। Only Caleb said, go, we can conquer that land. He said the positive thing. Caleb and Joshua, 2 people, brother. Yeah, Caleb and Joshua, yes. Yes. केवल 2 व्यक्ति कैलेब और जोशुआ ने ही दो लोग ने ही बोला कि हम लोग उस देश में जाकर उन दानव को हम हरा सकते हैं और उस देश पे हम कब्जा कर सकते हैं। Then what happened? The people who gave bad report never entered the Canaan. तो क्या हुआ? जो लोगों ने गलत ये बताया, गलत रिपोर्ट दिया, वो लोग और उनके संतान कभी भी उस देश में वो लोग जा नहीं सके, कनान देश में जा नहीं सके। And the Caleb and Joshua who give the good report and they have the confidence to enter the promised land, they entered into that land. केवल जोशुआ और कालेब वो लोग उस कानान देश में जा सके क्योंकि उनके पास वो हिम्मत था, धैर्य था कि परमेश्वर उनके साथ है और उनको विजय दे रहा है। You should obey the word of God, whatever may be the situation. If God is telling you to do something, do it.
and you will get it from God. हमें हमेशा परमेश्वर का वचन का आज्ञा पालन करना है, यद्यपि हमारे जीवन में कितनी भी गंभीर समस्या कितनी भी क्यों न बड़ी हो, हमें परमेश्वर को वचन को पालन करना है। जब परमेश्वर हमें बोलता है तो हमें करना है। If you give back a negative thing, maybe you look at your circumstances as said it is not going to happen, then you are actually offending the word of God, offending the Holy Spirit. जब हम हमारी परिस्थिति को देखते हैं तो हम पवित्र आत्मा को हम शोक पहुंचाते हैं। They rebel against the word of God. That's why they cannot enter the Canaan. ये 10 लोग परमेश्वर के वचन के आज्ञा के विरुद्ध में काम किया, बलवा किया, इसलिए ये लोग कानान देश में प्रवेश नहीं कर पाए। And God is warning some of the people watching. You are rebelling against the word of God and it is dangerous. और परमेश्वर यहाँ पे कुछ लोगों को ये चेतावनी दे रहा है कि आप लोग जो है परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में आप बलवा कर रहे हो और ये बहुत गंभीर समस्या है आपके जीवन में। Don't rebel against the word of God. Don't rebel against the word of God. परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में बलवा मत कीजिए। Even the prophecy may be beyond your imagination, beyond the human ability, but believe it. This will come to pass. आमीन आमीन। हो सकता है कि मिली है, ये भविष्यवाणी इतनी बड़ी हो सकती है कि आपके मन और उसको कभी उसको ग्रहण नहीं कर पा रहा है, कभी सोच नहीं पा रहे, लेकिन आपको ये भविष्यवाणी जो दी जा रही है, ये भविष्यवाणी तो आपको विश्वास से उसको ग्रहण करना है। Many days ago in this Zoom, I prophesied to a family. कुछ दिन पहले मैंने एक परिवार के लिए इस भविष्यवाणी के सभा में मैंने भविष्यवाणी दिया। I said to them, you are going to get a financial blessing from God. मैंने उन्हें कहा कि आपको आर्थिक आशीष मिलने वाली है परमेश्वर से। But that boy said, we did not want financial blessing. We are happy in our situation. I remember that case. ऐसी बात हुई कि जुम की सभा में भविष्यवक्ता ममानी एक परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे थे, भविष्यवाणी कर रहे थे और उस व्यक्ति को बता रहे थे कि परमेश्वर आपकी आर्थिक समस्या को बढ़ा रहा है। तो वो व्यक्ति ने कहा कि हमें आर्थिक आशीष नहीं चाहिए। Actually, he was rebelling against the Holy Spirit, not against me. असल में वो व्यक्ति जो था वो पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बलवा कर रहा था, मेरे विरुद्ध में बलवा नहीं कर रहा था, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कर रहा था। So today the God is again remembering you. Believe your promises, whatever may be. Believe your promises, it will come to pass. आमीन। आज परमेश्वर वही बात बोल रहा है कि जो भी मैंने वादा आपको किया, जो भी उन वादों को आप विश्वास कीजिए, ये सब आपके जीवन में पूरा होने वाला है। If you speak negative things for your promises, you cannot enter into that promise. अगर आप नकारात्मक बातों को बोलेंगे आपके जो वाचा के लिए, आप कभी भी कनान देश पहुंच नहीं पाएंगे। Many people say, for example, we want to die. They are just saying that we want to die. Then what will happen? They will definitely die. कुछ लोग ऐसे ही मजाक से बोल देते हैं कि हमें मरना है, तो क्या परिणाम होगा? वो अवश्य समय के पहले ही मर जाएंगे। The truth is, you are made like God and your words have power. सच्चाई ये है कि आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हो और आपकी जबान में सामर्थ है। This is our topic. Our words have power. यही तो हमारा आज टॉपिक है आज का कि हमारे जबान में सामर्थ है, हमारे जबान में सामर्थ है। Let us read Proverbs chapter 18 verses 21. नीति वचन का 18 का 22वां वचन हम पढ़ते हैं। The tongue can bring death or life. Those who love to talk will reap the consequences. Proverbs 18, 20, 22. 18, 21. 21, maybe the Hindi Bible difference. Yes, got correct. You are correct. Okay. जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जो उससे प्रेम रखते हैं वे उसका फल पाएंगे। करेक्ट। So
Your tongue has power, तो इसका मतलब क्या है? आपके ही जीभ में सामर्थ्य है and you can bring death and life. हाँ, और आपके जीभ में ही मृत्यु और जीवन है। If you speak life, the life will come to you. अगर आप जीवन बोलेंगे तो जीवन तो आपके पास आएगा। If you speak death, the death will come to you. अगर आप मृत्यु की घोषणा करेंगे, मृत्यु के बारे में बात करेंगे, तो मृत्यु अवश्य आपके पास आएगा। So use your tongues carefully. तो आप सभी लोग अपने जबान का इस्तेमाल बहुत ही केयरफुली यूज कीजिए। So we are living in a fallen world, you know. हम सभी लोग एक गिरे हुए संसार में जी रहे हैं। Wherever you go, you can see the negative things. If you look at the newspaper, you can see negative reports, negative news. यस यस, हम जहां पर भी जाते हैं हम देखते हैं नकारात्मक बातों को। न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल में, हम सब जगह पे नकारात्मक बातों को ही देखते हैं। But as a believer, as a born again believer, don't search for negative things, negative news, negative programs, nothing. आमीन आमीन। एक नए जन्म पाए हुआ विश्वासी के कारण आप नकारात्मक खबरों को ध्यान न दीजिए। ऐसे खबरों को ढूंढिए मत, खोजिए मत, नकारात्मक बातों पे ध्यान न दीजिए। If you want to grow in Christ, do the spiritual exercise. अगर आपको मसीह में बढ़ना है तो आत्मिक व्यायाम कीजिए, आत्मिक व्यायाम। Because the spiritual exercise is good for this life and also for the coming life. क्योंकि आत्मिक व्यायाम जो है वो इस जीवन के लिए भी लाभदायक है और आने वाले जीवन के लिए भी लाभदायक है, दोनों जीवनों के लिए लाभदायक है। Today when I am preaching, the God is showing me that if you believe, you can see that you already know what is the problem in your life. And if you believe this word and if you speak with your mouth the positive thing, that will happen in your life. अगर आज जो मैं बातें बोल रहा हूं, अगर उन बातों को आप विश्वास कीजिएंगे और आप अपने ही जबान से सकारात्मक शब्दों को बोलेंगे, तो ये शब्द जो आप बोल रहे हो, ये शब्द आपके जीवन में प्रकट होगा। We are going to do a prophetical action and prophetical prayer right now. अभी हम सब लोग भविष्यवाणी का कार्य करेंगे, भविष्यवाणी का प्रार्थना भी करेंगे। We are going to do two things. First thing, whatever is your problem, you are going to say to your problem to remove from your life in the name of Jesus Christ. तो सबसे पहली बात आप क्या करोगे? जो भी समस्या आपके जीवन में, उन समस्या को आपको ही बोलना है कि यीशु के नाम से उखड़ के चली जाए। And second thing you will say, whatever you need, whatever blessing you need, you will Amen. say with your mouth and it will happen. You have to do it in your Jesus Christ's name. और दूसरी बात, आपको क्या चाहिए, आपकी क्या जरूरत है, उन बातों को आपको बुलाना है यीशु मसीह के नाम से। Just now, right now I am praying. Right now I am going to pray. Can we repeat? Yes, we are going to. Prophet. We are Prophet, continue. We are continue. Can we repeat them? Can we repeat to the people Yes. so they will understand? Yes. Just repeat it so that they will understand it. Then you pray. Yes. Yeah. Just repeat the points. Repeat the points once again. Okay. 2 points. Just repeat it. Okay. Naisbal, can you repeat for the Hindi also? So they Yes, I'll do it in Hindi. Yes. Okay. Yes. Okay. That's right. Right now, I will say something, and you have to say with me. अभी भविष्यवक्ता मानी बोल रहे हैं कि अभी मैं कुछ बातों को मैं बोलने वाला हूं और आप सब लोग मेरे पीछे आपको बोलना है। I know my tongue has authority. मुझे मालूम है मेरी जीभ में सामर्थ है। And I know Jesus Christ is living inside me. और मुझे मालूम है यीशु मसीह मेरे हृदय में वास करता है। अब आप सभी लोग बोलिए। Repeat with me. Just सभी repeat what I am saying. सभी लोग भविष्यवक्ता मानी के पीछे हर एक जन विश्वास से इन बातों को घोषणा कीजिए, विश्वास से बोलिए। हम नहीं सुन रहे, पवित्र आत्मा सुन रहा है। And now the problem, what is your problem? Say with your mouth your problem.
the problem what you are facing, just say with your mouth that problem. अभी जो भी समस्या आपके जीवन में है, पारिवारिक समस्या, जो भी क्षेत्रों में समस्या, उन समस्या को आपको बोलना है कि चली जाए, उखड़ के चली जाए। So in the name of Jesus, I am casting out that problem from my life. यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इन समस्याओं को मैं अपने जीवन से उखाड़ के फेंक रहा हूं। जो भी समस्या, उन समस्या को लेकर बोलिए। I am casting out that problem with my, in the name of Jesus Christ. उन समस्या को मैं अपने पारिवारिक जीवन से, सेवकाई से, काम में, जो भी क्षेत्रों में, मैं उसको उखाड़ के फेंक रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। I am casting out that financial problem from my life in the वो name of आर्थिक Jesus Christ. समस्या को मैं अपने जीवन से उखाड़ के फेंक रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। I am casting out that family problem from their life in the name of Jesus मैं Christ. उन पारिवारिक समस्या को इनके जीवन से उखाड़ के फेंक रहा हूं। I am casting out that problem in their bodies that cannot be healed, that वो hormonal समस्या problem. जो उनके शरीर में जकड़ के रखी है, उन समस्या को उखाड़ के फेंक रहा हूं यीशु के नाम से। In the name of, and whatever be their problem, in the name of Jesus, I am casting out that problem in the name of Jesus Christ. जो भी समस्या इनके जीवन में, उन सारी समस्या को यीशु के नाम से मैं उसको रद्द करता हूं और उसको मैं उखाड़ के फेंकता हूं मैं यीशु के And नाम right से। now the power is moving. I know whatever you have said, it is already happened in the spiritual realm. और अभी जो आपने घोषणा की है, ये हो चुका है आत्मिक क्षेत्रों में। आमीन, I आमीन। don't know your problem, but God knows your problem. But when you speak it with your mouth, because of the power of your tongue, it already happened. पर मुझे आपकी समस्या नहीं मालूम है, लेकिन पवित्र आत्मा को ये समस्या मालूम है, क्योंकि आपने अपने ही जबान से इन बातों को बोला है। ये अवश्य आपके जीवन में होने वाला है। Second thing, you are going to bless yourself. When I say something, you have to repeat with me. दूसरी बात, आप खुद ही, आप अपने आप को ही आशीष करेंगे। जो बात मैं बोल रहा हूं, आपको मेरे पीछे बोलना है अभी। Because you have the authority to bless yourself. क्योंकि आपके पास वो अधिकार है, आप खुद को आप आशीष दे सकते हैं, खुद को ही आप आशीष दे सकते हैं। Just place your hand on your head आप अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर रखिए and repeat with me. Father, और मेरे I पीछे, know. Father, पिता I know परमेश्वर, I am a blessing. पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं कि मैं आशीष हूं। In the name of Jesus Christ, I bless myself. यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं खुद को आशीषित करता हूं। And I am a blessed person in Jesus Christ. और मैं आशीषित व्यक्ति हूं मसीह यीशु में। I will lend to many nations. मैं राष्ट्रों को उधार दूंगा। And I will not take any lend from anybody. मैं दूसरों से उधारी नहीं लूंगा, लेकिन दूसरों को दूंगा। Wherever I go, I will prosper in the name of Jesus Christ. जहां पे भी मैं जाऊंगा, मैं उन्नति मैं पाऊंगा। Wherever I lay my hands, that place will be blessed. जहां पे भी अपने हाथों को रखूंगा, वो क्षेत्र, वो जमीन, वो आशीषित हो जाएगी। I am a blessing, and my children, my family, my all is a blessing. मैं आशीषित व्यक्ति हूँ, मेरे बच्चे, मेरे घराने, ये सब लोग आशीषित लोग हैं। And today onwards, I see blessing in every area of my life. आज से मैं अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आशीष को देख रहा हूँ। In the name of Jesus, I pray. Amen. यीशु के सामर्थी नाम से प्रार्थना करता हूँ। आमीन। Sister Tintu Mary, the God is telling me, God is already done a miracle in your life right now. बहन मेरी, परमेश्वर बता रहा है कि उसने आपके जीवन में एक चमत्कार को कर चुका है अभी आपके जीवन में। While I am praying, I see that some problems related with your life, your personal life, God is going to already resolve that problem. मैं देख रहा हूँ कि आपके व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर कुछ समस्याओं का समाधान कर रहा है आपके व्यक्तिगत जीवन में। God heard your confession and God heard your prayer. परमेश्वर ने जो आपने अभी जो घोषणा किया, उसको उसने सुना और आपकी प्रार्थना को भी सुना बहन टिंटू।
And I can see that the deliverance is moving in your life. और मैं देख रहा हूँ कि छुटकारा आपके जीवन में घूम रहा है। And everybody who received this word, it is already moving in your life. The deliverance is moving in your life. आमीन आमीन। और जिन लोगों ने इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण किया, ये छुटकारे की सामर्थ आपके जीवन में कार्य कर रही है। So I believe it is already happened. मैं विश्वास कर रहा हूँ कि ये हो चुका है। So what I am telling you, when you speak, use the word of God. जो मैं क्या बात बोलना चाहता हूँ कि जब आप बातें करते हो तो परमेश्वर का वचन का इस्तेमाल कीजिए। As an ordinary person, as we all have a tendency to speak negative things in our life. एक साधारण मनुष्य होने के नाते हमारे पास एक तीव्र इच्छा होती है नकारात्मक बातों को हमेशा बोलने के लिए। But because you are a new creation, always try to exercise your faith, replace that negative thought with the word of God. लेकिन आप एक नई सृष्टि हो तो आप यत्न कीजिए कि नकारात्मक शब्दों के बजाय आपको सकारात्मक शब्दों को, परमेश्वर को, वचनों को बोलना है, नकारात्मक शब्दों को नहीं बोलना है। The word of God is life. परमेश्वर का वचन जीवन है। हम जब उसको बोलेंगे, speak life to your circumstances. अपने परिस्थिति को जीवन बोलिए। And even though you walk, the Bible says, even though you walk through the valley of shadow, you will not be feared. बाइबल बोलती है यद्यपि हम मृत्यु की छाया से भी हम गुजरेंगे, वहां से चलेंगे, तो भी हमारी हानि नहीं होगी। And Bible says we are in the light, we are walking in the light. बाइबल बोलती है कि हम ज्योति में हम चलते हैं। The light is inside us. ज्योति हमारे अंदर है। So what happens if you walk through the valley of shadows? तो क्या होगा जब हम अंधकार के छाए हुए वो कराई से हम जब चलेंगे? The reality, the valley of shadow is there. That is the reality. सत्य बात है कि जो खराई है, अंधकार का जो खराई है वो तो है, वो तो सत्य बात है। But when you walk through that valley of shadows, it will become a valley of light because the light is inside us. लेकिन जब हम लोग उस अंधकार के तराई से वो छाया से हम जब चलेंगे तो ज्योति जो हमारे अंदर में, वो ज्योति वो खराई को, तराई को वो पूरा उजाला कर देगा, क्योंकि वो ज्योति हमसे बाहर निकलकर वो बाहर प्रकट हो रही है। The light is inside us, and wherever we go, the light will manifest. आमीन। ज्योति जो हमारे भीतर में, वो ज्योति बाहर निकलकर प्रकट होगी जहां पर भी हम जाएंगे। आमीन। When I say this, I feel the presence of God with me. आमीन आमीन। अभी जो वाक्य मैंने बोला, परमेश्वर की उपस्थिति को मैं महसूस कर रहा हूं। मैं अभी जो वाक्य मैंने बोला, maybe you are living in a place that is a cursed place, but when you place your hand, when you enter into that place, that the curse will be vanished from that place because you are the light. हो सकता है आप ऐसी जगह पे आप रह रहे हो जो बहुत श्रापित जगह है, लेकिन जब आप उस क्षेत्र में प्रवेश करते हो, आप अपने हाथों को वहां रखते हो, परमेश्वर की ज्योति आपसे बाहर निकलकर वहां पे उजाला आएगा। God is telling, come to the light. You are the light. You are the light of the world. परमेश्वर बोलता है कि ज्योति में आइए, क्योंकि आप खुद संसार के लिए ज्योति हो, आप खुद हैं। Because Jesus is the light of the world, and the light of the world already inside. आमीन। क्योंकि यीशु जगत की ज्योति है और ये ज्योति हम सब के अंदर में निवास करता है। When the light is manifesting, the evil spirit will flee from you. जब ज्योति का प्रकाशन होता है तो हमारे अंदर में जो दुष्ट आत्मा है वो बाहर निकल जाती है। No disease can stay inside your body. कोई भी बीमारी आपके भीतर में नहीं रह सकता है। No negative forces can attack you because the light is inside. कोई नकारात्मक बातें आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्योति आपके अंदर में वास कर रही है। If you are living in a darkness, the God is telling you, believe this revelation of light. Your place will be changed to a light place, a place of light.
अगर अगर आप जिस जगह पे आप रहते हो वो पूरा अंधकार से भरा हुआ है, आप इस वचन जो ज्योति का वचन को अगर आप विश्वास करोगे, ये ज्योति आपसे बाहर निकल कर प्रकट होगी और आपका जो क्षेत्र है वो जगह पूरा ज्योतिमय हो जाएगा। And God gave me a name when I was meditating, the Shegar Datta, Shegar Datta. If you are शेखर watching, the God, Shegar Datta, if you are watching, the Lord is telling you, you are living in a place of darkness, and God is going to give you a revelation of light. और जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने एक नाम बताया मुझे, वो नाम है शेखर दत्ता। अगर ये भाई इस वचन को सुन रहा है, परमेश्वर बता रहा है कि आप ऐसी जगह पे रह रहे हो जो बहुत अंधकार से भरा हुआ है, लेकिन आपके अंदर में जो ज्योति है वो ज्योति बाहर निकल रही है और उस जगह पे ज्योतिमय कर रही है, क्योंकि आप इस वचनों पे आप विश्वास कर रहे हो। भाई शेखर दत्ता, आप जहां When पर I भी हो, see, when I see your place, I can see darkness. It is a covered in darkness, and the power of Satan is there. But because of the power of light, that situation is going to change. मैं देख रहा हूं कि आपकी जो जगह है वो पूरा अंधकार से भरा हुआ है, लेकिन आपका जो क्षेत्र है वो पूरा ज्योतिमय हो रहा है, क्योंकि आप परमेश्वर यीशु पे विश्वास कर रहे हो। The Pavan D'Souza, your place is in darkness, but now the light of the Lord is coming to your place. भाई पवन डिसूजा, आपका जो जिस जगह पे आप रहते हो वो पूरा अंधकार से भरा हुआ है, लेकिन परमेश्वर उस जगह पे अभी ज्योति दे रहा है, क्योंकि वो ज्योति आप में से बाहर निकल रही है। Don't say negative things. Your problem is you are saying many negative things with your mouth. This is your problem. भाई पवन, आप अपने जबान को कंट्रोल कीजिए। आप हमेशा नकारात्मक बातों को बोलते हैं अपने जबान से, ये समस्या है Even आपके if you, जीवन में। even if you see a negative things, you speak the word of God, and that problem will be vanished. अगर आपने कुछ नकारात्मक बातों को भी देखा है, तो आप एक परमेश्वर के वचन को बोलिए उस समस्या में, तो वो The way, नकारात्मक बातें निकल जाएंगी। because this word has life, and this word has the light. आमीन। क्योंकि ये जो वचन है इसमें जीवन है और इसमें ज्योति भी है। And I believe it is right now manifesting for you. और मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपके जीवन में प्रकट हो रहा है। Keep praying, keep praying. Don't sleep. प्रार्थना करते Keep praying. प्रार्थना करते रहिए भाई पवन, प्रार्थना करते रहिए। And you read Bible, read Bible. अब बाइबल पढ़ते रहिए भाई पवन, and God will speak directly to you, and God will himself deliver you. परमेश्वर आपसे स्वयं बातें करेगा और आपको छुटकारा दे रहा है। And I can see that some incidents is going to happen in your life, and you are going to get a direct encounter with Jesus Christ. और मैं देख रहा हूं कि आपका परमेश्वर यीशु मसीह के साथ एक मुलाकात होने वाला है। And the chains are being broken right now. आपके जीवन में जो जंजीर है वो टूट रही है भाई पवन। Because when the apostles were in the prison, a light came into that prison. क्योंकि जब प्रेरित लोग जब जेल में बंदवाई में थे, तो वहां पे ज्योति आए और उनकी जंजीरें टूट गई। And this is happening right now in your life. This is right now happening in your life. और ये बातें अभी आपके जीवन में हो रही है भाई पवन। Whether others believe or not, in my spirit, in my spiritual eyes, I see this deliverance is happening right now. यद्यपि कोई विश्वास करे या नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूं अपनी आत्मिक आंखों से ये आपके जीवन में हो रहा है। Father, I am praying for Pavan. Let him receive that direct revelation of God. पिता परमेश्वर, मैं पवन के लिए प्रार्थना करता हूं कि वो अपने परमेश्वर से वो प्रकाशन को प्राप्त करे। I cancel every negative thoughts that is hindering his progress. हर एक नकारात्मक बातों जो उसको आगे बढ़ने में रोक रही है, उसको मैं रद्द करता हूं। Right now, give him your special power of the anointing to his tongue. अभी आप विशेष अधिकार दीजिए उसकी जबान पे अधिकार लेने के लिए। Whenever he speak the word of God, let the power manifest. जब भी ये भाई परमेश्वर की वचन को बोलेंगे, परमेश्वर का सामर्थ का प्रकटीकरण हो। Pavan, the God is telling you, place your hand on your family members
place your hand on your family members and the power of God will manifest through you. भाई पवन, परमेश्वर बोल रहा है कि आप अपने हाथों को अपने परिवार के हर एक सदस्य के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर का सामर्थ उनके ऊपर प्रकट होगा। And right now the God is handing over the authority to you. और अभी परमेश्वर आपको ये अधिकार दे रहा है। In the name of Jesus I pray, amen. यीशु के सामर्थी नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। So we are coming back to the verse, Jeremiah chapter 15 verses 90. अभी यिर्मयाह का 15 अध्याय का 19वां वचन में हम आते हैं। And if we keep on reading that verse, we can see that अगर इस वचन को आगे पढ़ते रहेंगे तो हम देखेंगे if you speak good words rather than worthless ones, you will be my spokesman. और यदि तू निकम्मों में से अनमोल को निकाल ले और तू मेरा प्रवक्ता बनेगा। And God is telling, if you ready to remove the negative words and ready to accept the good words, you will be God's spokesperson. परमेश्वर बोल रहा है कि यदि आप नकारात्मक बातों को बाहर निकालने के लिए तैयार है और अच्छी बातों को बोलने के लिए तैयार है, तो हम परमेश्वर के लिए प्रवक्ता बन जाएंगे। And God will use you for his ministry. और परमेश्वर हमें उसकी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करेगा। And God will speak through to the nations. और परमेश्वर हमारे द्वारा से राष्ट्रों में बात करेगा। And the power of God will manifest when you speak. और परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होगी जब हम बातें करेंगे। And also he will change your character. और परमेश्वर हमारे चरित्र को भी बदल देता है। You know that Moses was a person of stammering. He was a stammering man. हम देखते हैं मूसा जो था वो तोतला व्यक्ति था। When God chose Moses and God was ready to speak with Moses as his mouth, his character changed. जब परमेश्वर ने मूसा को चुना और उसकी जबान का इस्तेमाल करना चाहता था, तो परमेश्वर ने उसके चरित्र को भी बदल दिया। He became a great leader. He became a great prophet. मूसा एक बड़ा अगुवा बना, एक बड़ा भविष्यवक्ता बना। Maybe your personality is not as good, but God is telling you, if you believe this, you are going to the spokesperson of the God. परमेश्वर हो सकता है कि आपके पास वो पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि यदि भी आप विश्वास करोगे तो मैं आपको बदल दूंगा और परमेश्वर के लिए परमेश्वर का मुंह आप बन जाओगे। I am not a person who is I am not a talkative person. मैं ज्यादा बोलचाल करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। But God is using me as a prophet, as an evangelist. लेकिन परमेश्वर मेरा इस्तेमाल कर रहा है एक भविष्यवक्ता के नाते, एक सुसमाचार प्रचारक के नाते। God changed my character. परमेश्वर ने मेरे चरित्र को बदल दिया। So don't look at your personality, don't look at your ability. If you receive this word, you will be a spokesperson of God. आमीन, आमीन। तो आप अपने काबिलियत पे मत देखिए, अपने पर्सनालिटी के ऊपर मत जाइए। अगर आप इस वचन को आपने ग्रहण किया तो परमेश्वर आपको उसके मुंह का उसके मुंह के लिए बोलने वाला आपको प्रवक्ता बना देगा। The some persons, they are watching this program. The God is telling you, I see that you are connecting with politicians. मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग इस मीटिंग में जुड़े हैं और ये कुछ लोग जो है पॉलिटिकल अगुवे लोगों के साथ जुड़े हैं। And I see that God is connecting you to some ambassadors of some countries. और परमेश्वर आपको कुछ राष्ट्रों के एम्बेसडर के साथ आपको जोड़ रहा है। Because God is your you are a spokesperson of God. क्योंकि आप परमेश्वर के लिए मुंह है। And I believe that I am taking this prophecy for me also. I will talk to the national leaders, world leaders. Amen, amen. ये भविष्यवाणी I'm taking it. मैं विश्वास कर ये भविष्यवाणी मैं खुद अपने लिए ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं भी राष्ट्रों के बड़े बड़े अगुवों के साथ मैं भी उनके लिए बात करूंगा, उनके साथ बातें करूंगा। Because God chose us as a spokesperson. Because of that,
we will connect with world leaders. I आमीन. believe. यस यस, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है कि हम परमेश्वर के लिए उसके लिए हमारा मुंह परमेश्वर के लिए होगा, तो परमेश्वर हमें राष्ट्रों के बड़े बड़े लोगों के साथ हमें वो मिलाएगा और हम उनके लिए परमेश्वर के लिए मुंह बन जाएंगे. If you are ready, the God will be with your mouth. अगर आप तैयार हैं तो परमेश्वर आपके मुंह के साथ रहेगा. आमीन. Just read Exodus chapter 4 verses 12. Just want to prove that. क्या निर्गमन का चौथा अध्याय का 12वां वचन को हम पढ़ेंगे इस बात को साबित करने के लिए. निर्गमन चौथा 12. Now go, I will be with you as you speak, and I will instruct you in what to say. The word of God says that. Yes. अब जा, मैं तेरे मुख के संग रहूंगा और तुझे सिखाता रहूंगा कि तू क्या क्या कहे. If you believe this word, the God is going to speak with your mouth. Speak with your mouth. यदि आप इस वचन को अविश्वास करेंगे कि परमेश्वर आपके मुंह के संग रहेगा और आपके मुंह से बोलेगा, and he will give you the extra wisdom to carry out his plans. और परमेश्वर आपको वो बुद्धि दे रहा है कि परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने के लिए. And in Isaiah chapter 50 verses 4 it is written, he has given the tongue of the learned to me. Yes. यशायाह का 50 अध्याय का चौथा वचन ऐसा लिखता है, प्रभु यहोवा ने मुझे शिष्य की जीभ दी है कि मैं थकितों को अपने वचन से संभालना जानूं. And because of that, he has given the disciples tongue. He has given an extra knowledge. I will do many things, mighty things for God. क्योंकि परमेश्वर ने मुझे शिष्यता का जवान दिया, इसलिए मैं परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए बड़े बड़े काम करूंगा. Do you know you have the mind of Christ? क्या आपको ये ज्ञान है कि आपके पास परमेश्वर का मन है? आमीन. Because Jesus is inside you and you have the mind of Christ. क्योंकि यीशु मसीह आपके भीतर में है और आपके पास परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का मन है. Jesus knows everything about the Father God. यीशु मसीह को परमेश्वर पिता के बारे में सब ज्ञान है. Actually, when I learned this revelation, I exercised this revelation. जब मुझे ये प्रकाशन का जानकारी हुआ तो मैंने इस प्रकाशन को मैंने अपने जीवन में इस्तेमाल किया. A person's mind knows everything about that person. एक व्यक्ति का मन दूसरे, about his own mind or someone else. Can you repeat it? His mind. Yeah. His mind. एक व्यक्ति का मन उसके खुद के बारे में सब कुछ उसे मालूम है. And you know that Jesus is inside me and Jesus is also inside me. और आपको ये बात मालूम है कि यीशु मेरे अंदर में है और यीशु आपके अंदर में भी है. And when I look at a person, I saw the Jesus in that person. और जब मैं कोई व्यक्ति को देखता हूँ तो मैं यीशु के उसके भीतर में देखता हूँ. And Jesus knows everything about that person. और यीशु को उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ मालूम है. Every details of that person, including his house, where he's going, where he's living, and what his future, everything Jesus knows. यीशु मसीह को उस व्यक्ति के पूरी जानकारी मालूम है, वो कहाँ पे रहता है, क्या करता है, उसके भविष्य के बारे में यीशु मसीह को उसका पूरा जानकारी है. So if I want to know some things about that person, I have to directly look to that person as a Jesus, the Spirit of Jesus. तो अगर मुझे उस व्यक्ति के लिए जानकारी मुझे लेना है तो मुझे यीशु की आत्मा को देखना है. So actually, when some days ago, when I was watching TV, a pastor was preaching on the TV. कुछ दिन पहले जब मैं टीवी में एक प्रचारक को देख रहा था, वो प्रचार कर रहा था. I just exercised this revelation. मैंने इस प्रकाशन को मैंने इसको इस्तेमाल किया. I don't know the name of that pastor. मुझे ये जो प्रचारक का नाम नहीं मालूम था. But I asked Jesus, what is his name? मैंने यीशु को पूछा, ये प्रचारक का नाम क्या है? And Jesus said to me, Kumar.
और यीशु ने बताया उसका नाम है कुमार। And I asked my mother, actually, she was watching that program, who is that pastor? And she said, his name is Kumar. तो मैंने अपनी माँ को पूछा, ये मेरी माँ उस प्रोग्राम को देख रही थी, तो मेरी माँ को पूछा कि ये पासवान का नाम क्या है, तो उन्होंने कहा इसका नाम कुमार है। God supernaturally revealed his name because we have the mind of Christ. परमेश्वर ने अलौकिक रूप से उस व्यक्ति का नाम बताया क्योंकि हमारे पास यीशु का मन है। This is how we apply the revelations in our life. The revelations is very important. इस प्रकार से हम ये प्रकाशन को हमारे जीवन में इस्तेमाल करते। प्रकाशन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। So you have the mind of Christ. इसका मतलब कि आपके पास यीशु का मन है। So you can influence the world. आप संसार को प्रभाव कर सकते हो, प्रभावशील कर सकते हो। Again, the Jeremiah chapter 15 verses 90. At the end part, we can see that. Yes. If you speak good words rather than worthless ones, you will be my spokesman. You must influence them. Do not let them influence you. तू मेरा प्रवक्ता बनेगा, वो तेरी ओर फिरेंगे पर तू उनकी ओर कदापि न फिरना। So I am interpreting as this verse, you should influence the world. The world should not influence you. आमीन। इसका मतलब ये है कि हम लोग संसार को प्रभावशील करना है, संसार हमको प्रभाव नहीं करना है। Because we know we are living in a fallen world, it has some negative things, but it should not affect our life, but we should affect the world. आमीन। क्योंकि हमें इस बात की जानकारी है कि हम इस ऐसे संसार में जीते हैं जो संसार गिरा हुआ है और इस संसार में नकारात्मक बातें हैं। ये नकारात्मक बातें हमारे जीवन पे प्रभाव नहीं होना है, लेकिन हम लोग इस संसार पे प्रभावशील होना है। When you see a calamity in the world, speak to that calamity to go. जब आप संसार में कोई दुर्घटना को देखते हैं तो हमें बोलना है उस दुर्घटना को जाना है। When you speak, the seasons will change. जब आप बोलेंगे तो मौसम ऋतु भी बदल जाता है। When you speak, the rules will change. जब आप बोलोगे तो जो नियम है वो नियम भी बदल जाएंगे। The destiny of many will be changed when you speak. जो लोगों के लिए जो भविष्य है परमेश्वर जो ठहराए वो बदल जाएगा। And you have an authority over your land. Wherever you living, you have that authority over your land. आपके पास अधिकार है आपकी वो उस भूमि पे जहां पर आप रहते हो, जहां पे आप रहते हो उस भूमि पर आपका अधिकार है। No forces of darkness have authority over you. कोई भी अंधकार का सामर्थ आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता। Because the God is inside you, and because of the living Jesus Christ inside you, you will influence the world. आमीन। क्योंकि परमेश्वर आपके भीतर में है और यीशु मसीह भी आपके भीतर में है, आप इस संसार को प्रभाव करेंगे, आप करोगे संसार को प्रभाव। And always listen to Jesus, what Jesus is saying to you. और हमेशा जो यीशु मसीह बोल रहा है उसको आप ध्यान से सुनिए। Whenever you have a problem, you have to replace that problem with Jesus. जब भी आपके पास समस्या है उस समस्या को आपको यीशु से उसको बदलकर यीशु को वहां पे जोड़ना है उस समस्या पे। So easiest to think to for a victory of your life. When you face a problem, think how Jesus will deal that problem. आपको अपने जीवन में जय पाना है तो जब भी आपके जीवन में कोई समस्या आती है आपको ऐसा सोचना है कि यीशु मसीह इस समस्या का समाधान कैसे करेगा। When you have a problem, don't call your pastor, don't call your prophet. Ask Jesus, what should I do? जब आपके जीवन में कोई समस्या है आप अपने पासवान को फोन न कीजिए, आप अपने भविष्यवक्ता को फोन नहीं कीजिए, आप यीशु को पूछिए कि इस समस्या का समाधान मैं कैसे करूं। And I can assure you that Jesus will speak to you. और मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि यीशु मसीह आपसे बातें करेगा, आपको बताएगा। And when Jesus is speaking to you, the power will also manifest.
जब यीशु मसीह आपसे जब बातें करेगा तो उसकी सामर्थ भी आपके जीवन में प्रकट होगा। आमीन आमीन। So how many of you believe this revelation? How many of you believe? आप में से कितने लोग ने आज का प्रकाशन को आपने विश्वास किया? आज के प्रकाशन को How many of you can understand the revelation what I taught today? कितने लोगों इस प्रकाशन को आज समझ सकते जो आज मैंने पढ़ा है आपके लिए? And God is telling you, exercise that revelation. परमेश्वर बता रहा है इस प्रकाशन को आप इस्तेमाल कीजिए। नकारात्मक बातों को नहीं बोलना है, परमेश्वर के वचन को बोलना है अपने जीवन में। If you exercise that revelation, you are going to God will move you to another realm of faith, another realm of spiritual realm. अगर हम नकारात्मक बातों को नहीं बोलेंगे लेकिन परमेश्वर के वचन को बोलेंगे, परमेश्वर हमें ऊंचे स्तर पे लेके जाएगा, ऊंचाई पे लेके जाएगा। Right now, I am praying for everyone. I am praying for everyone. If you have any problem in your body, any kind of sickness, I can pray for you. Otherwise, I will give you a common prayer. अगर किसी को यहाँ पे कोई बीमारी है तो उन लोगों के